Okay. So in yesterday's session, we have seen about life. So what is life? What is the meaning of living organism? This is what we have seen yesterday. Only 2 points we have seen. Okay, can you tell me what is life? What is life? Yeah, when we learn about life and organisms, okay, you are writing many things. Okay, carry on, because your contribution I always welcome. I want that you have to keep on write something over there. You have to respond. Yesterday I told you that what is life, but now you don't remember all the things. Yeah, you know living organisms. Okay, but what is life? What is life? No idea. See, when you are expressing certain characteristics like growth, responsiveness, or responses to stimuli, multiplication, and so on, we can say that you are a living organism. And when you express certain characters, we can say you have life. So what is life then? In yesterday's session, we have seen that you just see there, I'm showing the PowerPoint now. Okay. Now, just look at there, what is life? This there on the screen right now. So if you look at life, you can see that it is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reactions. That means if a living organism is having life, this living organism will show certain chemical reactions. They will show certain chemical reactions, and that chemical reactions we can say results in growth and development, responsiveness, adaptation, and reproduction या reproduction etc. अभी मेरे को एक आंसर मिला है चैट बॉक्स में, मैं थोड़ा देखता हूँ उसमें क्या लिखा है. A distinctive characteristics of a living organism from dead organism or non-living thing are specifically distinguished by the capacity to grow, metabolize, respond to stimuli, adapt, and reproduce. Exactly. So if you are a living organism, you have life, आपको क्या कर सकता है? You will say, or you will show, not say, show what? Growth, development, responses, adaptations, reproductions, and even death also. Only living organisms are dying. Only the organism which is having life will die. Okay. So that means all these are nothing expressions of certain chemical reactions taking place there in the body of an organism. Okay, that is what is called life. Okay. Now, if you look at what is a living organism, what is a living organism? What is a living organism? Living organism, we can say again, same thing. Look at there. So if these living organisms are having life, वो क्या करेंगे? सेल्फ रिप्लिकेट करेगा और चेंजेस इवॉल्वमेंट मींस एवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, सेल्फ रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेगा, देन रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुली आपको देखने को मिलेगा. ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म अगर एक्सप्रेस करता है, if an organism is expressing all these characteristics, you can say that is a living one. अभी मैं चैट बॉक्स में लिखने को बोला तो कितना लोग रिस्पॉन्ड करता है? Who is responding? Who is having life? जो जिंदा नहीं है तो वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. अभी मैं कंप्यूटर को बोलेगा मेरे को रिप्लाई देगा बोले तो कंप्यूटर रिप्लाई नहीं देगा, बिकॉज ये जो डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं वो सब
नॉन लिविंग है। Only living organism is having the life, and only living organism is capable to express the characters. ये दो पॉइंट्स कल मैंने आपको बताया था, what is a life and what is a living organism. Okay, अभी मैं ये कल दिखाया था, I think the properties of living organisms. कितना प्रॉपर्टीज मैंने कल आपको दिखाया था, एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जस्ट आपको दिखाया है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको दिखाया, कुछ आइडिया है? यू हैव एनी आइडिया? या, वेरी गुड। फाइव कैरेक्टर्स we have just shown over there. We didn't explain. I told you that I will explain today. And what are those five characteristics? You just look at them. The first character is that growth. Second is that reproduction. And third is that metabolism. Very good. People are writing in the chat box. I'm very happy. And the fourth one is then cellular organization. And the last one is then consciousness. ये 5 points आपको इधर दिया है. Not only these 5 points, even more than that, but some 1, 2 or 2 more points are there. But आपका बुक में ये सब points दिया नहीं है. ओके, सो ये 5 प्रॉपर्टीज आपका बुक में हेडिंग जैसा दिया नहीं है. इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न बायोलॉजी, अगर आपको आगे नीट का एग्जाम देना है, मैं आपको, आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट नहीं है, एक एडवाइस दे रहे. आप आपका नीट का एग्जाम देने को प्लान है, इफ यू हैव द प्लान ऑफ गिविंग द नीट एग्जाम, आपका जो 11वीं का बोर्ड का जो टेस्ट बुक है, वो टेस्ट बुक में सिर्फ डिपेंड करके नहीं बैठना. आपको मैं एडवाइस करता हूं, एनसीईआरटी का बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, वो मार्केट में जो बुक अवेलेबल है वो बुक लेके उसमें से रीड करो, बुक रीड करो, वो स्टडी करो. क्योंकि अपना बोर्ड का बुक में कंटेंट जो दिया है वो बराबर नहीं है, वो पूरा नहीं दिया है, खाली 1-2 सेंटेंस ऐसा डाल के आगे गया है बुक बना के. सो आपको पूरा इंफॉर्मेशन वहां मिलेगा नहीं. अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन, आपको अच्छी तरफ से बायोलॉजी स्टडी करना है, आगे नीट का एग्जाम आपको अटेंड करना है, ऐसा आपको प्लान है, तो ये सिर्फ बोर्ड का बुक लेके मत बैठो. बोर्ड के बुक के साथ एनसीईआरटी का बुक आप ले लीजिए, रीड कर लीजिए, सो उसमें से आपको सारे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पास होने के लिए बैठा है, इफ यू जस्ट वांट टू पास बायोलॉजी, जस्ट 35 मार्क मिलके आपको क्लियर करके जाना है, नथिंग टू वरी, इधर जो मिल रहे उतना ही स्टडी करो, दैट इज मोर देन इनफ. बट बायोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये भी मेरे को बोलना ही पड़ता है अभी. दिस ऑल्सो आई वांट टू टेल यू दैट बायोलॉजी सब्जेक्ट इज सो सिंपल सब्जेक्ट, सो इजी सब्जेक्ट, बट रिमेंबर, very easy to get first class in biology, but difficult to get a third class in biology. पास होना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फर्स्ट क्लास मिलना बहुत सिंपल है. सो सच ए सब्जेक्ट बायोलॉजी इज दैट. सो डोंट underestimate your biology subject. Biology subject is also equally important. जूम पे लेक्चर चालू है, आप जूम में है ना अभी? Now the lecture is going on there in Zoom. आप लोग कहाँ हैं? आप कहाँ से बात किया अभी? व्हाट्सएप में है क्या? लेकिन व्हाट्सएप मैंने अटेंड नहीं किया. ओके, कोई गूगल मीट में जाकर बैठा है क्या? एक सेकंड में चेक करके आता हूँ. नहीं, उधर कोई नहीं, मैं अभी तक लिंक नहीं दिया ना. ओके,
Okay. Now, see how much you want to study biology. आपको आगे कैसा करना है, कितना स्टडी करना है, वो हिसाब से आप बुक चूज करना. लेकिन मैं सबको एडवाइस कर रहे हैं एनसीईआरटी का बुक रीड करने के लिए. अभी मार्केट में अवेलेबल है, इवन ऑनलाइन में भी बुक आप सर्च करें तो मिल जाएगा. डाउनलोड करके उसमें से भी आपको रीड कर सकता है. सो हमने 5 पॉइंट्स बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक, ग्रोथ. सेकंड क्या है, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, यूज चैट बॉक्स. ओनली यू राइट ओनली फर्स्ट लेटर, डोंट राइट द होल थिंग. फर्स्ट लेटर, सिर्फ फर्स्ट लेटर आप लिखना. ओके, वेरी गुड. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, C, cellular organization, and one more C, that is consciousness. Very good. Now we are going to see this part there in detail. So first one is that growth. I think that you are observing all these things there on your device. आपका डिवाइस में ये जो स्क्रीन आपको अच्छी तरफ से मिल रहा है, I think. Am I right, friends? You are getting information there on your screen. My voice is audible. Yes, good. Now, now you see the first character we are going to study about growth. Now, can you tell me that what is growth? You have any idea? What is growth? Can you tell me what is growth, friends? No idea. Okay. Now you just imagine that. Physical changes. Okay, good. Somebody written development. Very good. So you see, अभी इधर कितना लोग बैठा है at present अपना क्लास में? 57 स्टूडेंट्स है. तो 57 स्टूडेंट्स एक एक आइडिया बोलेगा तो आप सभी लोगों को, अभी देखिए मैं चैट बॉक्स थोड़ा ये करता हूँ, चैट बॉक्स में थोड़ा पब्लिक करता हूँ, सब ये भी एवरीबॉडी कैन सी व्हाट इज राइटिंग. ओके, सो अलग अलग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा. ग्रोथ के बारे में मैं पूछूंगा तो अभी कुछ लोग लिखा है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, कुछ लोग लिखा है फिजिकल डेवलपमेंट, कुछ लोग लिखा है इनसाइड बॉडी डेवलपमेंट, और कुछ लोग लिखा है ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन सेल साइज. So अलग अलग answer I'm getting. If you can write to answer, write the responses there in everyone format, then everybody can see what points we are getting there in the chat box. What is growth? Just imagine, अब 10 साल पहले आप लोग कैसे था? How you were just 10 years before? Or you just imagine that मैंने कल आपको बताया है when you are 1 year old, कैसे था? Same manner you are there right now? Or when you are 5 years old, how you were, the same manner now you are? That means day by day आपको क्या होता है? Growth होता है. So what is growth? Growth, we can say, increase in number and mass of cells. Increase in number and mass of cells by cell division. This is what is called growth. अब इधर देखिए, अभी सभी ऑर्गेनिज्म, भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है, उनका जो लाइफ है, एक सिंगल सेल से डेवलप किया गया है. अब इधर देखिए, ये एक सिंगल सेल से लाइफ कैसे डेवलप होता है, देख लीजिए. यू सी दिस वन सेल दैट डिवाइड्स, यू आर गेटिंग 2 cells. The 2 divides, you are getting 4. 4 divides, you are getting 8. The number increase होते रहता है. 10 साल पहले आपका बॉडी में जो सेल्स था, सेल्स का नंबर अभी का नंबर, सेल्स नंबर सेम नहीं है. The number of cells has been increased. Why the number of cells has been increased? Because cell has divided, or cells are dividing, keep on dividing. So when the cells divide, you can see that the number increases and even the mass also increases. अब देखिए 5 साल पहले आपका वेट कितना था, 10 साल पहले आपका वेट कितना था, जब when you are 1 year old आपका वेट कितना था, now you are at the age of 15 or 16, what is your weight? अभी और 10 साल के बाद आपको जो वेट अभी कितना है, उतना वेट है नहीं है. These all changes, क्योंकि
ये changes results in growth. So what is growth now? Growth means increase in number and mass of cells. And how the number of cells and mass of cells increases? By means of cell division. अभी cell division क्या है? Cell division जो बोलता है, when cell is getting mature, it divides. अभी आपको ये पिक्चर आपको इधर देखने को मिलता है. अभी एक बड़ा सेल है, एक मेच्योर सेल है. मेच्योर सेल देखिए धीरे धीरे डिवाइड हो गया और टू सेपरेट सेल्स फॉर्म किया है. अब ये सेल, ये इसको बोलता है डिविजन ऑफ सेल, इसको बोलता है माइटोसिस. So the growth is occurring, the growth is happening because of mitosis, or the growth is happening because of continuous cell division. The growth is happening because of increase in number of cells. The growth is happening because of the increase in mass of cells. So now is it clear to you? ग्रोथ के बारे में मैंने जो पॉइंट सबको बता दिया है, एक ही सेंटेंस बताया. That is clear to you, friends? If it is so, you give me a big Y over there. Yes. Now you see. Yes, good. Now you see the growth occurs in plants and animals. It is not there in the same manner. अभी प्लांट्स का, अभी देखिए आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेगा तो अपना सराउंडिंग्स में, अपना एनवायरनमेंट में दो टाइप लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेजॉरिटी में होता है. एक प्लांट से, दूसरा एनिमल से. अभी प्लांट्स का ग्रोथ और एनिमल्स का ग्रोथ आप देख लीजिए. डू यू थिंक दैट द ग्रोथ विल बी सेम देयर इन प्लांट्स as well as in animals as far as their lifespan is concerned? No, डिफरेंट होता है. अभी प्लांट्स में ग्रोथ कैसा है देखिए, दिस इज अबाउट द प्लांट्स. प्लांट्स में ग्रोथ देखिए, दैट इज कंटिन्यूअस. अगर एक प्लांट डेवलप हो गया है सीड से या सीडलिंग से, एक प्लांट डेवलप हो गया तो दैट इज growing. The growth of that plant takes place continuously throughout their life or till the death of this plant. I mean, till it dies. So throughout the lifespan, आपको देख सकता है plants are growing. So in plants, the growth is, हम क्या बोलता है, चैट बॉक्स में एक लेटर लिख लीजिए. प्लांट्स में ग्रोथ कैसा है? कंटिन्यूअस. वेरी गुड. सो प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है. कंटिन्यूअस मतलब थ्रू आउट द लाइफ स्पैन टिल इट डाइज. लेकिन एनिमल्स में कैसा है? एनिमल्स में आपको देख सकता है ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूअस. इट इज अप टू ए सर्टेन एज. सो ये एक एज का लेवल तक है. मैं आपको आप ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ह्यूमन बीइंग्स का ग्रोथ till how many years, or till the age of, till what age? Can you tell me? Human beings ka growth या आपका growth? Yeah, very good. Some are writing there, very good. So, okay, somebody writing 18, somebody writing 21. Okay. मेरा आवाज नहीं आ रहा है. बाकी लोग क्या बोलता है मेरा आवाज के बारे में? You are getting my voice? My test, please. Yeah. So if you are facing any problem in getting my voice, maybe the connectivity problem, आपका connectivity problem होगा, आपका device का problem होगा. आप थोड़ा उधर देख, क्योंकि मेरे को multiple points में से ऐसे क्या बोलता है points आता है चैट बॉक्स में, आवाज नहीं आ रहा बोले तो फिर दिन मेरा है. सभी आप सिर्फ एक ही कंप्लेंट आया है. ओके. सो 21 कुछ लोग बोला 21 मैक्सिमम ग्रोथ. नॉर्मल केस में हम लोग बोलता है, normally we say till the age of 20 या 21. The growth of human beings till the age of 20 या 21. Now, that means now you are in a growing stage. Now you are in 15 or 16, right? You are in 15 or 16. That means you are in a growing stage. You are growing. Or how many years more you will grow now? Somebody returned 17. Okay, very good. But how many years more you will grow then? Four years, 3 to 4 years. उसके बाद क्या होता है? No growth. Shubham, you want to say something?
I got a question that why it happens. I will tell you that. I will come to that point. A certain age में growth stop होने का कारण क्या है करके पूछ रहे. Shubham, you want to say something? You don't want to say? Okay. Okay. So you see that our age level is up to 20-21 years, you will grow. That growth means elongation of bones. आप देखिए अभी आप 16 या 17 जो बोलता है 21 में देखो आपका अभी एक नॉर्मली आप शायद हो चुका है अभी फ्रॉम 14 टू ये एज में आप थोड़ा देखेगा ना लास्ट 2-3 इयर्स बैक या 9th स्टैंडर्ड में आपका कैसे था वो स्टेज आप या 8th स्टैंडर्ड का जो लेवल अभी का लेवल आप देखो आपका हाइट अभी बढ़ गया बराबर. अभी देखो आप 2-3 साल में आपका हाइट और एक बार बढ़ जाएगा. लेकिन 21 के बाद ग्रोथ नहीं होता जो बोलता है कौन सा कॉन्सेप्ट में बोलता है दैट इज बेस्ड ऑन द हाइट. Your height will stop. The growth in height will stop when you reach 20 या 21 years old. अभी ये growth in height कैसे होता है? That is because of elongation of bones. आपका जो bones का जो elongation होता है, okay? So ये bones का elongation का वजह से आपका growth height होता है. Sorry, आपका height grow होता है. You are growing, but when you reach age 20 या 21, उसके आगे bones को elongation नहीं होता है. The bones will not elongate. वो elongation बंद हो गया, stop हो गया, तो then आपका height increase नहीं होगा. अभी समझो now you are 170 सेंटीमीटर हाइट में है, शायद 21 ईयर ओल्ड में आपका हाइट शायद 176 175 हो जाएगा. उसके बाद आप 50 साल तक रहना या 100 साल तक रहना आपका हाइट बढ़ेगा नहीं. Your height will not increase beyond that. Why? Because your bones are not getting elongated. So आपका अभी इधर क्वेश्चन आया था आप सर्टेन एज में आपका ना ग्रोथ स्टॉप होने का कारण क्या है? आफ्टर दैट एज your bones are not going to elongate. अब इधर देखिए एक अंडा से देखिए चिक डेवलप किया है, देखिए इट इज ग्रोइंग देखिए एक मैच्योरिटी लेवल में आ गया है. इसके बाद इट विल नॉट ग्रो इन हाइट, उनका मास बढ़ता है. अभी आपका देखिए आपका बॉडी में आपका जो हाइट इंक्रीज होता है साइमल्टेनियसली आपका वेट भी इंक्रीज होता है. लेकिन वंस यू रीच द एज ऑफ 20-21 योर हाइट विल बी स्टॉप. हाइट जब स्टॉप होगा तभी आपका वेट मास होगा करके मैंने नहीं बोला. मैंने बोला है आपका हाइट वही आपका ग्रोथ कंसिडर. आप ग्रोथ बोले तो हाइट ये स्टॉप हो गया, लेकिन मास बढ़ता रहता है, आपका वेट बढ़ता रहता है, आपका साइज ऑफ द बॉडी 21 ईयर में कैसा था जैसा नहीं है 30 इयर्स में, 40 इयर्स में, 50 इयर्स में, 60 इयर्स में आपका वेट चेंज होता रहता है. नाउ मे बी यू मे बी 55 इयर्स ओल्ड, आई मीन सॉरी 55 इयर्स 55 केजी वेट है, ये शायद 70 होगा, 100 होगा, बहुत खाना खाने वालों का 100 का ऊपर जाता है. That means weight increases but height never increases. That is why it says that in animals the growth is only up to certain age. लेकिन उसके आगे भी सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, ज्यादा करके क्या होता है सेल डिविजन occurs that replacing the worn dead cells. Okay, so this is about the growth point. Now let us go to the next. I hope that you understood this part. You understood it clearly, friends? Yes. Now you see here आपका स्क्रीन में आप एक पिक्चर देख रहे हैं. कौन सा पिक्चर देख रहे हैं आप? You are getting a picture there. Mount Everest. Okay, बीच में एक क्वेश्चन आया था. You see up to a age level your growth is taking place and after that अपना growth मतलब growth downward होता है. Downward in the sense we are getting old. हमको एक एज लेवल है उसके आगे, इसलिए
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आई मीन एनिमल्स में ग्रोथ को लिमिट है। अभी प्लांट्स के बारे में बोलोगे तो क्या, दैट इज कीप ऑन ग्रोइंग। लेकिन एनिमल्स जैसा नहीं है, एक टाइम के लेवल बाद उनका जो कैपेसिटी, उनका जो कैपेबिलिटी, उनका जो डिविजन, उनका जो ताकत, ये सब क्या होता है, डिटोरिएट होता है। So deteriorate होता है। That is why you see when the people become 60-year-old, when compared to 50, they become weak. They become weak. वो weak होने का कारण वही है। So 50 से 60 में जाते टाइम लोग वीक होने का कारण उनका बॉडी में जो एनर्जी है, जो मेटाबॉलिक लेवल है, कैपेबिलिटी है, डाउन होता है। ये सिर्फ एनिमल्स में होता है या एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं होता है। प्लांट्स में क्या होता है, लेकिन उसमें भी हमको मालूम है कितना कितना ओल्ड प्लांट्स आप देखो, यू कैन सी दैट ग्रोथ इज देयर, स्टिल वी कैन सी दे आर नॉट देयर इन द यंग स्टेज। सो वी आर गेटिंग ओल्ड बिकॉज यू कैन सी दैट देयर इज अ लेवल फॉर अस, cells are keep on dying, multiplication of cells, that you can see that is becoming less। एक लेवल के बाद मल्टीप्लिकेशन डिविजन कम हो जाएगा, और क्या बोलता है, cells are becoming dead, that also that become faster। okay, now here you are seeing a mountain। अब देखिए ये माउंटेन को आपको आप देखे तो यू कैन सी दैट दिस माउंटेन इज ग्रोइंग, दिस माउंटेन इज आल्सो ग्रोइंग। हाउ दिस माउंटेन विल ग्रो? दिस माउंटेन इज ग्रोइंग मींस बाहर से इसको कवर, अभी फॉर एग्जांपल अभी का सीजन आपको मालूम है, कोल्ड क्लाइमेट है ना। आप देखिए, आप कंबल यूज करता है या सो मेनी क्लोथ से आपका बॉडी आप कवर करता है। सो आपका बॉडी कवर करे तो आपका साइज बढ़ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। सिमिलर मैनर आपको इधर देख सकता है, ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन का ऊपर यू कैन सी दैट मटेरियल्स अक्यूमुलेट होगा तो देयर ऑल्सो यू कैन सी ए ग्रोथ, बट दैट ग्रोथ इज नॉट द ग्रोथ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बाहर से मटेरियल उसका ऊपर जमा करेगा तो, अभी आप देख लीजिए आपका घर पे एक टेबल है, वो टेबल बड़ा का साइज आपको मालूम है, लेकिन इफ यू वांट टू ग्रो दैट टेबल, क्या करना है, उसका ऊपर सामान रखने का, ऐसा बड़ा 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 होकर टेबल बहुत बड़ा होगा। लेकिन वो कैसे बड़ा हो गया है? बाय कीपिंग अक्यूमुलेटिंग मटेरियल्स ऑन दैट, बाय अक्यूमुलेटिंग मटेरियल्स ऑन दैट उसका साइज बढ़ता रहता है। सो दैट इज नॉट अ ग्रोथ। Why it is not a growth? The growth must be from internal। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होता है, दैट ग्रोथ आपको बोल सकता है दैट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। नाउ यू सी, यू आर हैविंग द फूड, you are taking the vitamins, you are taking the minerals, all the nutrients which are essential for your body, and the body is adding all these nutrients to your cytoplasm in the cell, and thereby the cell increases, the cell number increases, multiplication increases, I mean multiplication takes place। that means living organism में जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ इंटरनल होता है, मतलब अंदर से होता है। बाहर से जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नेचुरल नहीं है। बाहर से जो ग्रोथ होता है दैट इज सेल्यूलर ग्रोथ। द ग्रोथ इज सेल्यूलर। सेल मल्टीप्लाई होगा तभी ग्रोथ होता है। वो सेल कहाँ है? अंदर है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इट सेज दैट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो होता है, इसका मतलब दैट इज एक्सटर्नल। वो दैट इज नॉट ए लिविंग ग्रोथ, दैट इज जस्ट क्या बोलता है, साइज बढ़ता है। आप कितना भी कवर करो, आपका पास एक बुक है, वो बुक एक न्यूज़पेपर से कवर करो, दूसरा न्यूज़पेपर से कवर, आपको बुक बहुत थिक हो जाएगा। वो भी ग्रोथ है। वेट, उनका वजन या वेट इंक्रीज हो गया, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है, वो लिविंग ग्रोथ नहीं है। ओके, सो ये लिविंग ग्रोथ यू कैन सी दैट इज फ्रॉम इंटरनल। Yeah, and Nitin has written that the height of a person reaches as an adult is the result of the genes as well as general health, nutrition. Very good, exactly. So that depends upon the genetic factors as well as the nutrition, nutrients he get, she get. Okay, so this is about the growth. So आपको ध्यान में रखना, growth means what? Growth, we can say growth is increase in size
or increase in weight of an organism. Increase in size or increase in weight of the organism, increase in height of the organism, ये सब growth है. So growth का main कारण division of the cell है. अभी living organisms में जो growth होता है, that growth is always from inside. So इतना points आपको ध्यान में रखना है growth के बारे में. I repeat the points: increase in number of cells and mass of cells by cell division. And second thing is that, second thing is that ये टेक्स्ट बुक में है, आप टेक्स्ट बुक रीड करेगा तो आपको समझ में आएगा, ये हेडिंग वाइज दिया नहीं है, ये ऐसा ही दिया है आपका टेक्स्ट बुक में पहला पेज में पहला कॉलम में पढ़ के देखो. उधर मैंने इसलिए बोला है, इधर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक बना के दिया नहीं है. टेक्स्ट बुक आप रीड करें तो आपको समझ में नहीं आएगा. उधर किया है ग्रोथ के बारे में लिखा है. मैं चाहिए तो आपको पैराग्राफ नंबर भी बोलता हूं. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वहां पॉइंट नंबर सी देखना. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन. समझा? सो बुक में है, आप ऐसा लिखे छोड़ना नहीं है. इट इज देयर इन द बुक, यू हैव टू रीड द बुक. जो बुक लिखा है वो बराबर नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है. ओके, आपको मैं नोट्स देता हूं. डोंट राइट एनीथिंग नाउ. नाउ आई विल गिव यू द नोट्स. आज आपको नोट्स आपका क्लासरूम में मिल जाएगा. ओके, नाउ सो दैट इज वन पॉइंट. नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन आपका बुक में कहां है? रिप्रोडक्शन आपका टेक्स्ट बुक में डी नंबर पॉइंट नंबर डी. नाउ व्हाट इज what is reproduction? Reproduction means production of young ones of its own kind. Production of young ones of its own kind is known as reproduction. Every living organism, whether it is a plant or animal, they are reproducing. So reproduction अलग-अलग टाइप होता है. रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप्स होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. अभी आपको मान लो रोज प्लांट, आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रोज प्लांट? आप उसका कटिंग यूज कर रहे हैं. ओके, एक रोज प्लांट का स्टेम कट करके प्लांट करे तो यू विल गेट अ न्यू प्लांट. दैट इज रिप्रोडक्शन. और यू कैन सी दैट देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एसेक्सुअल मेथड. सर्टेन स्पोर फॉर्म होता है उसमें, वो स्पोर किधर भी गिर जाएगा तो दैट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. Or advanced mode of reproduction is done, that is called a sexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है? उधर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है. ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा. एक गैमीट्स जब फ्यूज होगा, that will develop into a new individual. So 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर. आपका बुक में ये 3 टाइप्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया. But if you want to study more in detail about biology, you should read all these things. Okay, so reproduction means produce young ones of its own kind. Progeny बोलेगा तो young ones. Okay, having features similar to those of parents. इसलिए मैं बोला आपको produce young ones of its own kind. और तीसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? They are reproducing asexually as well as sexually. Even vegetatively also they are. Vegetative का मैं rose plant का example बोला. Okay, then now you see, if you look at unicellular organisms like amoeba या paramecium, वो सब मल्टीप्लाई होता है. ये कैसे मल्टीप्लाई होता है? They are all reproducing. How they reproduce? You see, वो एक ही सेल है उसका अंदर, वो सेल बड़ा होएगा और बाद में सेल स्प्लिट होगा. Now you see this one single cell that split and you get 2 individuals. Those things happening here. One is that the split cells break, cell divides, and 2 cells are formed. At the same time, 2 individuals are also formed. Okay, so unicellular organisms, bacteria are there. Okay, even algal members are there, amoeba is there. So ये सभी organisms में आपको क्या देख सकता है? Cell divides and number increases. अभी देखिए ये एक इंडिविजुअल है, ये देखिए धीरे धीरे स्प्लिट होता है and it become 2.
later on it becomes 2. So unicellular में ऐसा होता है, cell divides and you get 2 individuals. Yeah, you can say binary fission, multiple fission, many different types of fission there. Okay. Now, at the same time, there are some animals. वो एनिमल्स आप देखेगा ना, अब ये देखिए इधर एक एनिमल का मुंह लेकर के नाम लिखा है, दूसरा एक वर्कर हनी बी के बारे में लिखा. ये एनिमल्स में क्या होता है, इन दिस एनिमल यू कैन सी दैट सेल कैनॉट डिवाइड, cells cannot reproduce. I mean, cell cannot divide. That means they cannot reproduce. You see, there are some organisms they cannot reproduce. Okay, so Muleidea, even you just see that the donkey type animal. You see, Muleid they cannot reproduce there. Even honeybee they cannot. Even human beings may be sterile. Human beings are there. मतलब जो 45 chromosome number, 47 chromosome number उनको हम लोग बोलता है ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर को भी रिप्रोड्यूस करने को नहीं होगा. ओके, सो we can see that reproduction is what? The production of young ones of its own kind. Produce young ones of its own kind is called reproduction. Reproduction may be vegetative reproduction, yeah, asexual reproduction, yeah, sexual reproduction. Sexual reproduction is the most advanced one, and in sexual reproduction, 2 types of individuals are there: male and female. Male gametes produce होता है, female gametes fertilize, I mean produce होता है, and both the gametes are getting fused, and you get a new individual. Okay, लेकिन at the same time there are organisms which they cannot reproduce. They cannot reproduce. They cannot reproduce. Example, even human beings there. Human beings में transgenders example होता है. और हनी बीज में 3 type of honey bees है. उसमें worker honey bees they are sterile, and even this animal you see over here, this mullet, you can see that that is also sterile. Okay, so ये है second point. अभी मैं I come to the third point, that is called metabolism. ये metabolism आपका टेक्स्ट बुक में पहला वाला लेटर है, ये वाला. I didn't get that as liger का liger क्या है? I don't know what is this liger or written some other animals. Anyway, all advanced animals we can say that they are doing sexual reproduction. Okay, now we come to the third characteristics of life, third property of life, that is called a metabolism. Metabolism क्या है? अभी आप देख लीजिए, you are taking food. आप खाना लगा तो क्या होता है, आपका बॉडी में पूरा खाना डाइजेस्ट होके अपना बॉडी में पार्ट बन जाएगा. That the food what you have taken, आपने जो रोटी लिया है, आपने जो पूरी लिया है, जो चावल लिया है, दाल लिया, जो कुछ लिया है, आपका बॉडी का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है. लेकिन आपने जो खाना खाया है वो कहाँ जाता है अपना बॉडी में डायरेक्ट? फर्स्ट आप माउथ में डाले तो कहाँ जाता है? अपना स्टमक में जाता है. स्टमक में क्या होता है? यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज हैपनिंग देयर इन योर स्टमक? What will happen to the food what you consume? The food you have taken, what will happen to it? Yeah, biological reaction. What do you call that biological reactions in one word? No. Yes, very good, very good. I got the answer. Digestion. So digestion hota hai. What is this digestion? The breaking down of the complex food materials what you have taken into simple one, and that is absorbed into the body, and thereby your growth is taking place. Okay, so you can see that in our body a lot of activities are going on. Our body is a factory. अब देखिए कोई बाजू में बैठकर टेस्टी खाना खाता है, उनका स्मेल आ गया तो आपका मुंह में क्या लगता है? आपका माउथ ड्राई होता है या वाटरिंग चालू होता है? What will happen? Watering? Your mouth is watering? Yeah, right. Why? Because your body is responding to the smell. Yeah, saliva comes. That means metabolic reactions are started there.
That means in all the living organisms, whether it is a plant or animal, there is a common principle there. That is what is called a metabolism. What is metabolism? अब कैसे define करेगा metabolism? Metabolism means the sum total of all the activities taking place there in our body. What is metabolism? अब मैं थोड़ा ये जो बात किया ना, थोड़ा ध्यान से सुनना. The sum total of all the activities taking place there in the body. आपका बॉडी में जो एक्टिविटीज होता है, ये सभी एक्टिविटीज को कलेक्टिवली बोलता है मेटाबॉलिज्म. ओके, the sum total of all the biochemical reactions taking place there in the body of a living organism is called as metabolism. Now, metabolism, we can see that is of two types. Basically, two types of metabolism there. Okay, one is called catabolism and second one is called anabolism. Okay, one is called catabolism and second one is that anabolism. Now, what is catabolism? Catabolism, we can notice that आपने खाना खाया, वो पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, अपना बॉडी डाइजेस्ट कर दिया, ये ब्रेक डाउन प्रोसेस को बोलता है कैटाबॉलिज्म. ओके, सो ब्रेक डाउन प्रोसेस को बोलता है कैटाबॉलिज्म. आपका बॉडी में आपने खाना खाया, वो खाना सॉलिड फूड है, वो खाना ब्रेक डाउन हो गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर उसमें से 6 आइटम को निकाल दिया. आपका बॉडी सेपरेट किया 6 आइटम, एंड दो 6 आइटम को बोलता है न्यूट्रिएंट्स. 6 न्यूट्रिएंट्स को निकाल दिया. आपको मालूम है न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? आपका बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स या आपका फूड में जो रहता है न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? 6 types of nutrients are there. You have any idea what are the nutrients? Yeah, okay, you are writing there. Good. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. Carbohydrates, I repeat, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. And all these 6 nutrients you are getting from the food you have consumed. ये कैसे सेपरेट हो गया है? By means of digestion. Digestion में क्या हुआ? Solid food break down into simple one. ये जो breaking down process को बोलता है, that is what is called a catabolism. ये प्रोसेस को बोलता है कैटाबॉलिज्म. और दूसरा, ये जो न्यूट्रिएंट्स को यूज करके आपका बॉडी बिल्टअप हो गया. Your body is constructed, your body is built up of using these nutrients. So उधर क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स को यूज करके आपका बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर दिया है. That means this is a making up process. This is a constructive process. ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और मेकिंग अप प्रोसेस को बोलता है एनाबोलिज्म. सो एनाबोलिज्म क्या है? दिस इज अ मेकिंग प्रोसेस. एनाबोलिज्म इज ए मेकिंग प्रोसेस. कैटाबोलिज्म इज ए breaking process. Making, breaking. Otherwise, construction and destruction. Construction and destruction. ये process को collectively बोलता है metabolism. So metabolism is what? Metabolism is a constructive process as well as destructive process. Constructive process मतलब making process, that is called anabolism, और destructive process उसको बोलता है catabolism. अभी ये जो केमिकल प्रोसेस अपना बॉडी में होता है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ. ओके, अभी इधर क्या लिखा है? सो ये रिएक्शंस, मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वी कैन डेमोन्स्ट्रेट. ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस वी कैन डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल. ये आउटसाइड, अभी अभी देखिए इधर आपको एक पिक्चर मिल रहे हैं. लेबोरेटरी में कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं. ये जो केमिकल लेबोरेटरी में करने वाला रिएक्शंस को बोलता है इन विट्रो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. वी कैन डू आउटसाइड, बट दैट इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपका बॉडी में क्या होता है मेटाबॉलिज्म, दैट इज ए लिविंग कैरेक्टर. तो इतना है मेटाबॉलिज्म. आई होप दैट यू अंडरस्टूड अबाउट मेटाबॉलिज्म. आपका टेक्स्ट बुक में पहला वाला पॉइंट है. ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वेरी सिंपल. आपको मालूम है बायोलॉजी के बारे में स्टडी करें तो सबसे पहले आप ये बोलता है
living body is made up of cells, whether it is a plant or animal. Body is made up of, body is made up of, whether it is a plant or animal, body is made up of, come on quickly tell me, cells. In the plant you can see cell there, in animal body also you can see cell is there. Any living organism you take, any living organism you take, that is made up of cells. सेल का नंबर चेंज होगा, एक ही सेल वाला होगा, एक ही सेल वाला है तो हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्युलर, और मेनी सेल्स है तो बोलते हैं मल्टी सेल्युलर. हम लोग मल्टी सेल्युलर है. अमीबा एक यूनिसेल्युलर है. एक बैक्टीरिया के बारे में बोले तो यूनिसेल्युलर है. पैरामेशियम के बारे में बोलेगा तो यूनिसेल्युलर है. यूग्लिना के बारे में बोलेगा तो यूनिसेल्युलर. ईस्ट के बारे में बोलेगा तो यूनिसेल्युलर. लेकिन ये अभी ये प्लांट को दिखाया इधर, ये प्लांट के बारे में बोलेगा तो दैट इज मल्टीसेल्युलर. बट सो whether it is plant or animal, you can see that is made up of cells. Okay, so that is another important character of property of living organism. The body is made up of cells. इसके साथ में और एक पॉइंट बोल रहे, ये पॉइंट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो यू शुड नो इट. और एक पॉइंट दिया, डेथ. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इधर नहीं दिया, मैं अभी बोल रहे. so every living organism once it is born, अगर एक बार स्टार्ट हो गया उनका लाइफ, you can see that will die. Death. Another important character of all the living organism in the universe is that death happens. एक बार पैदा हुआ है, definitely they will die. Today or tomorrow, yeah, after some time they will die. So death is another important character of all the living organism. Death में क्या होता है, आपका बॉडी का सभी कैपेबिलिटी we can say, that means capacity to perform activities, metabolic reactions in the body, ये जब स्टॉप होता है, डेड. समझा ये पॉइंट मैंने जो बोला अभी? आपका बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, आपका बॉडी को एक कैपेसिटी है, ताकत है ये उठा के चलाने के लिए, लेकिन जब आपका कैपेसिटी वो चले गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बंद हो गया, then we say you are dead. And ultimately the last point I want to say that consciousness आपका टेक्स्ट बुक में F पॉइंट नंबर F, लेकिन वो लोग कॉन्शियसनेस करके लिखा नहीं है उधर. ओके, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? Consciousness, we can notice that it is the ability of an organism to sense their environment and respond accordingly. अभी आपको मालूम है, अभी आपको शौक होता है, आप कुछ हॉट प्लेट में टच किया है, आप क्या करेगा? तुरंत यू आर रिस्पॉन्डिंग, यस और नो? अवेयरनेस, राइट? दैट इज कॉन्शियसनेस. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. ये कॉन्शियसनेस क्या है? ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी. मैं कल आपको एक पिक्चर दिखा के बोला था, इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स वेयर? आपने बोला टुवर्ड्स सनलाइट, कुछ लोग बोला टुवर्ड्स वाटर. That is also response of the organism. That is also ability of the plant to recognize where the water is, where the sunlight is. So ऐसा जो ability है सेंस करने का, एनवायरनमेंट सेंस करने का. अभी आपको मालूम है ये एक क्लाइमेट आपको मालूम है, एकदम ठंडी क्लाइमेट है ना. So you know that when you get up in early morning, you know shivering is there. So what do you do there? You take the blanket. So you are responding. आपका एनवायरनमेंट आप सेंस कर रहे हैं, and accordingly you are responding to that environment, that stimulus. So ये करेक्ट, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह वगैरह. ओके, सो वो लाइट का तरफ से होता है, वाटर का तरफ से होता है, टेम्परेचर का तरफ से होता है. अभी दूसरा, अभी रास्ते में अभी आप चल के जाते टाइम एक टाइगर आया आपको अटैक करने के लिए, आप क्या करेगा? यू विल उनको सैल्यूट मारेगा. So you will तुरंत respond, you will run from there. Yeah, you are writing there, you will run. So that means you are responding to it. अभी थोड़ा घर पे जाके शुगर है सोच के सॉल्ट लेके खाया, क्या करेगा आप? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट. सॉल्ट है, शुगर है सोच के सॉल्ट का डब्बा ओपन करके सॉल्ट खाया आपने, क्या लगेगा? व्हाट डू यू डू? you can just recollect that. वो कड़वा में ये जो क्या बिटर टेस्ट, आप क्या करेगा करके. So that means everywhere
you see you are responding because you are a living one. इवन देखिए आप चल के जाते टाइम ना ज्यादा पाउडर आपका नोस्ट्रिल्स में चले गया, आप क्या करता है? You are responding to it. Your body is responding to it. So ये है consciousness. Okay, every living organism in the universe, every living organism, whether it is a plant or animal, they are responding to the environment or they are responding to the stimulus, and this is what is called response. Yeah, this is what is called consciousness. अभी देखिए ये plant that is growing towards light, ये plant का जो leaf, ये touch me not plant है, माइमोसा पूरी क्या बोलता है? Touch me not plant. The moment you touch this plant, the leaf is going to close. अभी देखिए ये plant insectivorous plant है, ये insect इसका अंदर आएगा, क्या होता है आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं. अब इधर देखिए ये जो जानवर ये मिरर का अंदर देखता है, तो उसको समझ में आता है कोई उधर आया है उनको अटैक करने के लिए, वो भागेगा वहां से. So you can see that every living organism is having this consciousness. When this consciousness is not there, we can see that the human body, yeah, even the animal, we can say they are not like a living one. Okay, now just look at the next slide. You can understand one important thing. आप देख लीजिए ये पिक्चर. देखिए ये लीफ को टच करता है. So when you touch the leaf, what is happening? The leaf is going to close. That means that is response. ये प्लांट का नाम है टच मी नॉट. अभी ये देखिए एक प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट करके आपको बोल सकता है. देखिए इसका अंदर चले गया एक फ्रॉग. अभी ये फ्रॉग को क्या होगा आपको बाद में मालूम पड़ेगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, ये जिंदा वापस नहीं आएगा, बाहर आएगा ही नहीं, ये पूरा लीफ आई मीन वो खाता है. ओके, वीनस फ्लाईट्रा. सो यू कैन सी दैट ये सब क्या है, ये खुला पड़ा था. जब ये एनिमल अंदर गया है तभी उनको मालूम पड़ा, क्लोज कर दिया. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस. All the organisms, we say they are aware of their surroundings, so it is a character of property of living organisms. I hope that today's session you understood. Okay, even एक important point अभी मैं इधर आपको दिखा देता हूं. आपका टेक्स्ट बुक में ये भी नहीं है, बट मैं आपको पहले ही बोला टेक्स्ट बुक में जो है उतना ही स्टडी करना है, तो बायोलॉजी सिंपल नहीं होगा. ओके, अब इधर देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा है. Human being is the only animal. Human being is the only animal having self consciousness. समझे पॉइंट? ओके, इतना बोल के मैं ये पार्ट बंद कर देता हूं. ओके, आपको ये पहला पैराग्राफ हमें पहला पेज का पहला कॉलम में जो दिया है वो 5 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया. अभी सेकंड पैराग्राफ सेकंड कॉलम में फर्स्ट पेज में सेकंड कॉलम में जो ऊपर का जो पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं बाद में. नेक्स्ट सेशन में आपको बता देता हूं. मैं बाद में आपको मैं परसों क्लास लूंगा आपको. सुबह ज्यादा टाइम मेरे को लेने को मींस आई डोंट हैव द इंटरेस्ट टू टेक. आई विल टेक हार्डली 45 मिनट्स, उतना मेरे को चाहिए बस. ओके, सो डे आफ्टर टुमारो वी विल टेक द क्लास नाउ. सो इसका नोट्स मैं अभी डाल देता हूँ. थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा स्टडी करके जाना पड़ेगा. सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक इतना ही पढ़ के जाएगा तो you will be there in trouble, because अभी आप देखिए आपका टेक्स्ट बुक का पहला कॉलम पढ़ेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा उधर क्या लिखा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज पूछेगा तो यू विल सिट ब्लैंक देन. ओके, सो मैं इतना बात करके मैं बंद करता हूं. आई होप दैट यू सो नेक्स्ट क्लास वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड देन चैप्टर खत्म हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट अभी आज भी जूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है. 67 स्टूडेंट्स अभी फिलहाल है. एक बार अगर 100 क्रॉस हो गया तो देन मैं आपको डायरेक्टली बोल रहे अभी अगर क्रॉस हो गया 100 क्रॉस हो गया आपको जूम में एंटर करने को नहीं होता है, देन यू कैन गो टू योर क्लासरूम. वहां से आपको गूगल मीट में आ सकता है, क्योंकि गूगल मीट में अभी क्या करके रखा था, मैं गूगल मीट अभी शेयर करके रखा था, लेकिन देखिए मैं देखो अभी प्रेजेंट में डालेगा तो यू विल सी देयर. आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट इट. जूम में उधर कोई एंटर करेगा तो उनको मिलता है, आपको उधर शेयर में नहीं आएगा वो, क्योंकि मैं अभी उधर कोई क्लास में बैठा तो अभी उनको मेरा आवाज वगैरह सुनने को नहीं होएगा. लेकिन मैं चालू करके रखा था
100 क्रॉस किया तो मैं तुरंत उधर चालू कर देगा, ये चालू करके डालेगा। सो आप ध्यान में रखना, अगर आपको नेक्स्ट क्लास में ऐसा आते टाइम ना अगर कुछ कारण से आपको अंदर आने को नहीं होता है, डायरेक्टली आप क्या करना है, क्लासरूम में जाना, क्लासरूम में जाके मैं आपको पहले जो दिखाया था ना वो रास्ते से आप अंदर आके क्लास अटेंड करना है। ओके, सो इतना है आज के लिए। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन, टुडे सेशन। आपका अटेंडेंस मैंने बोला ना, आपका अटेंडेंस आपने जो नाम लिखे अंदर आया तो आपका अटेंडेंस आ चुका है। अटेंडेंस के लिए मैम बोला गूगल मीट का जैसा नहीं, अभी 8 जैन 2021 करके एक स्टूडेंट है इधर, मैं उनको पहले पर्सनल मैसेज भी डाला था नाम चेंज करने को, उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। उसका अटेंडेंस ये आपका उस चैट बॉक्स में कुछ नाम लिखे न, मत भेजो, राउंड 3 करके मत भेजो, कुछ भी मत लिखो, क्योंकि मैं अटेंडेंस वहां से नहीं लेता है, ये सिस्टम जनरेटेड अटेंडेंस है। एक एक बार आप अंदर आ गया ना, आपका अटेंडेंस वहां रजिस्टर हो गया है। ओके, अभी देखिए 8 जैन 2021 करके एक स्टूडेंट उधर है, ये स्टूडेंट के बारे में बोला तो ध्यान में रखना, ये स्टूडेंट का अटेंडेंस आज 8 जैन 2021 करके ही जाएगा। ओके, सबका अटेंडेंस रजिस्टर हो चुका है, अटेंडेंस के बारे में आप टेंशन मत लो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज and I hope that you enjoyed this session. Now we are going to leave, and day after tomorrow we will meet. I will post this note there in the classroom right now. Okay then, bye bye, take care, have a nice time.